Hello dear students, today Maths 2 chapter number 2 sequences and series exercise 2.4. As you know very well from question number 1 to 5, that is you have completed all these questions in the previous video. Now see question number 6. Insert two numbers between 1 upon 4 and 1 upon 3 so that the resulting sequence is a HP. As you know, HP means harmonic progression. So we have to insert two numbers between 1 upon 4 and 1 upon 3. If we write all these numbers in a sequence, so resulting sequence is a HP, that is harmonic progression. See the solution. Let two numbers be 1 upon H1 and 1 upon H2. Or you can say consider two numbers 1 upon H1 and 1 upon H2. Therefore, the numbers 1 upon 4, 1 upon H1, 1 upon H2, 1 upon H3 are in harmonic progression. If we take reciprocal of all these numbers, so we get here 4, H1, H2, 3, and 4, H1, H2 and 3 are in an AP according to the definition of HP. If we take the reciprocal of the HP sequence, they form arithmetic progression. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें क्या करना है उसको आराम से समझो, देखो और सॉल्व करो. वी हैव कंसिडर्ड numbers, or you can say new numbers, 1 upon h1 and 1 upon h2. So including these, this is the first number and this is the last number for the HP. So there are four numbers, 1 upon 4, 1 upon h1, 1 upon h2, 1 upon and 3. If we take reciprocal of these numbers, means ये सभी नंबर्स के अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया हुआ है, और जिनको डेफिनेशंस नहीं मालूम है ये इसी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन के एंड में जाकर के देखेंगे, एक लिंक दी गई है, वो लिंक को क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन, फार्मूलाज और अदर फार्मूलाज पर लेके चली जाएगी. वो वहां पर एक वीडियो सामने ओपन हो जाएगा जिसमें ओनली फार्मूला ही एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें देख सकते हो और समझ सकते हो. इसके बाद फिर से ये वीडियो में आकर के अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो. तो देखो 4h1, h2, 3 are in an AP. So here first term of AP 4, that is T1 equal to A equal to 4. T1 means first term, it is equal to A and it is equal to 4. And last term 3 and it is देखो 1 2 3 4, ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म. तो T4 इक्वल टू, अब हमारा T4 Tn की फार्मूला मालूम है सबको, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो T4 इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3d. तो T4 इक्वल टू ए प्लस 3d एंड इट इज इक्वल टू 3 बिकॉज T4 इक्वल टू 3. देख लो यहां से ये फोर्थ टर्म है तो ये रहा T4 इक्वल टू 3, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला T4 इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी दैट इज ए प्लस 3d. So a plus 3d equal to 3. Now substituting the value of a from here, since a equal to 4, जो कि इसका फर्स्ट टर्म भी था t1, तो a equal to 4 substituting here, so we get 4 plus 3d equal to 3. Taking 4 on the right hand side, we get 3d equals 3 minus 4 and 3 minus 4 equal to minus 1. So 3d equal to minus 1. This implies that d equals minus 1 upon 3. Means common difference. ये हमें क्या मिला? Common difference. D for common difference, A for first term. So d equal to minus 1 upon 3. Now we know A equal to 4 and D equal to minus 1 upon 3. So you can find any term. अब हमें जो मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं, वैल्यूज ऑफ H1 एंड H2. तो अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो कि इसका जो H1 टर्म है, दिस H1 इज T2
H1 is what? T2. This is the second term. So T2 equal to H1, or according to the formula T2 equal to A plus D, because A plus 2 minus 1 into D. तो A plus D, T2 क्या होता है? A plus D. Substituting the values of A and D here, we get 4 plus minus 1 upon 3. So it is equal to 3 4 जा 12 minus 1, that is 11 upon 3. तो इस तरह से हमें H1 की वैल्यू क्या मिल गई? 11 upon 3. अभी हमें H2 की भी वैल्यू फाइंड करनी है. H2 इज द मिसिंग टर्म. तो T3 और H2 क्या है? थर्ड टर्म है. अगर हम लोग कंटिन्यू देखें T1 T2 T3, तो T3 इक्वल टू H2 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1, दैट इज 2D. तो H2 इक्वल टू A प्लस 2D. इट इज इक्वल टू, अब यहां पर वैल्यू ऑफ A 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 3. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A एंड D. तो सिंप्लीफाइंग ऑल दीज टर्म्स वी गेट, यहां पर हमें मिल जाता है 10 अपॉन 3. देखो यहां से इट इज माइनस 2 अपॉन 3, और यहाँ 3 4 जा 12, 12 माइनस 2, दैट इज 10 अपॉन 3. तो इस तरह से हमने देखा कि हमें H1 और H2 के वैल्यूज इजिली यहां से मिल जाते हैं 11 अपॉन 3 एंड 10 अपॉन 3. नाउ द नंबर्स, अब हमने नंबर्स क्या अज्यूम किया है वो भी ध्यान देना पड़ेगा. नंबर्स 1 अपॉन H1 एंड 1 अपॉन H2. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर 1 अपॉन H1 इक्वल टू 3 अपॉन 11. अब देखो 1 अपॉन H1 की वैल्यू क्या है? 11/3. हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 11 अपॉन 3, दैट इज 3 अपॉन 11. तो 1 अपॉन H1 की वैल्यू क्या मिली? 3 अपॉन 11. एंड 1 अपॉन H2, 1 अपॉन 10 अपॉन 3 इक्वल्स 3 अपॉन 10. 1 अपॉन H1 3 अपॉन 11, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 1 अपॉन H2 इज 3 अपॉन 10. Hence 1 upon 4, 3 upon 11, जो कि ये सेकंड नंबर है, 3 upon 10 दिस नंबर, एंड 1 upon 3 आर इन HP. हमने फिर से ये नंबर को यहाँ पर अरेंज कर दिया जैसा कि हमने अज्यूम किया था कि 1 upon 4, 1 upon H1, 1 upon H2 एंड 1 upon 3 आर इन HP. क्योंकि हमको HP में ही 2 नंबर्स इंक्लूड करने थे, 2 नंबर्स फाइंड करने थे, तो हमें जो फाइनल आंसर लिखना है वो HP में ही लिखना है. Hence 1 upon 4, ये तो गिवन नंबर ही है, यहाँ से देख सकते हो. वैल्यू ऑफ 1 upon H1 यहाँ से देख सकते हो 3 upon 11. वैल्यू ऑफ 1 upon H2 यू कैन चेक फ्रॉम हियर 3 upon 10, एंड लास्ट टर्म 1 upon 3 आर इन HP, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. So this is your final answer, 1 upon 4, 3 upon 11, 3 upon 10, 1 upon 3 are in HP. So you should write your answer, the two numbers between 1 upon 4 and 1 upon 3, 3 upon 11 and 3 upon 10. ये हमारे आंसर्स हो गए. अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि वहां पर हमें क्या सॉल्व करना है. सी क्वेश्चन नंबर 7. इंसर्ट टू नंबर्स between 1 and minus 27. Carefully, 1 and minus 27. So that the resulting sequence is a GP. अब यहाँ पर हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो GP, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए. और इसके पहले जो क्वेश्चन अभी आया था क्वेश्चन नंबर 6, वहां पर था हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो आइए अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम लोग इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. Let G1 and G2 be two numbers. Otherwise, you can consider other letters also X, Y, A, B, etc. Let G1 and G2 be two numbers. Therefore, 1 जो कि एक given number है, फर्स्ट यहाँ से 1, G1, G2 ये consider two new numbers हैं और लास्ट नंबर है -27 आर इन GP. फिर से देख लो we have to include two new numbers between 1 and -27. So consider two new numbers be G1 and G2. Therefore, 1, G1, G2 -27 are in GP. That is geometric progression. Here T1 equal to A. First term is A, that is 1. So T1 equal to A equals 1. And the last term, this is the T4. तो T4 इक्वल टू AR रेज टू n माइनस 1, दैट इज AR क्यूब, क्योंकि Tn का फॉर्मूला GP के लिए होता है A इंटू आर रेज टू n माइनस 1. तो T4 के लिए हो जाएगा AR क्यूब इक्वल टू -27. तो वी हैव वैल्यू ऑफ A 1
and value of AR cube equal to minus 27. Substituting the value of A here, which is 1, therefore 1 into R cube equal to minus 27. That is R cube equal to minus 27. This implies that R equal to minus 3, taking cube root on both sides. Or you can say R cube, here R cube equal to minus 3 whole cube, तो R equal to minus 3. इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो आर फॉर हियर कॉमन रेशियो फॉर जीपी आर इक्वल टू माइनस 3 ये हमें मिल गया. अब ये दोनों टर्म आने के बाद यू कैन फाइंड एनी टर्म इन जीपी. नाउ T2 सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है G1. देखो T2 इक्वल टू G1 इक्वल टू AR. T2 equal to G1 equal to AR raised to 2 minus 1, that is AR. Substituting the values of A and R, we get 1 into minus 3. क्या लिखोगे यहाँ पर 1 multiplied by minus 3 equal to minus 3. And T3 equal to G2 equals AR square. क्या लिखोगे यहाँ पर T3 equal to G2. ये थर्ड नंबर है. यहाँ पर देखो थर्ड टर्म that is G2 equal to AR square. AR square equal to 1 into square of minus 3 which is equal to 9. अब हमारे पास टू न्यू नंबर्स हैं G1 इक्वल टू माइनस 3 एंड G2 इक्वल टू 9. तो G1 इक्वल टू माइनस 3 एंड G2 इक्वल टू 9. हेंस 1 minus 3 9 minus 27 are in GP, that is geometric progression. So you should write your answers. Two new numbers are minus 3 and 9. कौन कौन से हैं minus 3 and 9. Now see question number 8. If the AM, that is arithmetic mean of two numbers, exceeds their GM, that is geometric mean, by 2 and their HM, you can say harmonic mean, by 18/5, find the numbers. If the arithmetic mean of two numbers exceeds their GM by 2, तो यहां पर हो गया. और सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. सेकंड कंडीशन है कि AM इज एक्सीड देयर HM बाई 18/5. तो फाइंड द नंबर्स. तो आइए सोल्यूशन यहां पर हम देखते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है. एक्सप्लेन करता हूं. लेट टू नंबर्स बी X एंड Y. अज्यूम कर लो कि यहां पर हमें टू नंबर्स क्या क्या हैं X एंड Y. एंड हियर A for arithmetic mean, देखो A for arithmetic mean, G for geometric mean and H for harmonic mean. ये जो लेटर्स यूज किए गए यहाँ पर A for arithmetic mean AM, G for GM geometric mean and H for HM that is harmonic mean. जैसा कि यहाँ पर दिया है तो AM को मैं A से डिनोट करूंगा और HM को H और GM को G. ठीक है. तो अब ये जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन AM of two numbers exceeds their GM by 2. This means A equal to G plus 2. क्या यहां पर आता है A equal to G plus 2. Or you can say since A minus G equal to 2, तो जो भी लिखो A equal to G plus 2 भी लिख सकते हो, A minus G equal to 2 लिख सकते हो. That is G equals A minus 2. Let it be equation first. देखो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स अरिथमेटिक मीन माइनस 2, क्योंकि अरिथमेटिक मीन 2 मोर है. एक्सीड का मतलब यहाँ पर है क्या 2 मोर, ग्रेटर, बिगर. तो अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन में माइनस 2 कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल, क्योंकि 2 यूनिट ये ग्रेटर है, बिगर है. अगर हम इसमें 2 यूनिट माइनस कर दिए तो GM के इक्वल हो गया. दैट इज G इक्वल टू A minus 2 and let it be equation number first. Similarly, according to the second condition of the question, A minus H, arithmetic mean minus harmonic mean, means A minus H equal to 18/5. क्या दिया गया यहाँ पर 18/5. That is H equal to A minus 18/5 and let it be equation number 2. Now we have two equations, G equal to A minus 2 and H equal to A minus 18/5. ये टू इक्वेशंस हैं. और हमारे पास एक और रिलेशन है जो G
एच और ए का रिलेशन देता है, तो यहाँ पर देखो सिंस जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, दिस इज द फॉर्मूला. You can say here, you can write here at the time of solution, we know that g square equal to ah. तो what is the value of g? देखो यहाँ से value of g क्या है, a minus 2 from equation first. तो यहाँ लिख सकते हो square of a minus 2 equals a as it is, value of h a minus 18 upon 5. तो a multiplied by a minus 18 upon 5 from 1 and 2. क्या लिखोगे यहाँ पर, from 1 and 2. So square of a minus 2 equals a into a minus 18 upon 5. Now expand it by using a minus b whole square formula. We get a square minus 4a plus 4 equals a square minus 18a upon 5. देखो यहाँ पर a into a square, a into 18 upon 5, this much. Here a square going by a square you can cross out. तो माइनस 4a, अब यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या आता है, माइनस 4a प्लस 4. तो प्लस 4 एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं एंड टेकिंग माइनस 4a ऑन द राइट हैंड साइड, so this becomes plus 4a. So we get here 4 equal to 4a minus 18a upon 5. देखो फिर से देख लो, 4 एज इट इज, a स्क्वायर गेट कैंसल्ड, माइनस 4a को हम लोग ले लिए कहाँ पर, राइट साइड में, तो हो गया प्लस 4a. तो माइनस 18a अपॉन 5, 4 इक्वल टू 4a माइनस 18a अपॉन 5. अब ये हो गया 5 4 जा 20a माइनस 18a एंटायर अपॉन 5. तो 20a माइनस 18a बिकम्स 2a अपॉन 5 हियर. तो 4 इक्वल टू 2a अपॉन 5. दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से देखो 5 4 जा 20, तो 2a इक्वल टू 20, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 10. ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ a. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a equal to 10 in equation number first. Therefore, g equals 10 minus 2. देखो यहाँ a minus 2 है, तो we put here 10 minus 2. g equal to 10 minus 2 equal to 8 from equation first. तो a equal to 10 and g equal to 8. हमें 2 values मिल गए. a for, ये ध्यान रखना है, arithmetic mean of 2 numbers and g for geometric mean of 2 numbers 8. तो a इक्वल टू 10 एंड g इक्वल टू 8. अब आइए इनके जो फॉर्मूले हैं वहां पर चलते हैं. तो अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, हमने नंबर्स क्या अज्यूम किया है, अब इनकी जरूरत पड़ेगी. तो am ऑफ दीज 2 नंबर्स मीन्स am ऑफ x एंड y, x प्लस y अपॉन 2. तो ये हम बोले कि इन शॉर्ट a इक्वल टू 10 मीन्स होगा x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 10, और g इक्वल टू 8 मीन्स हो जाएगा कि रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 8. रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 8, क्योंकि g होता है अंडर रूट एक्स वाई. तो आइए अब इसी फार्मूले के साथ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. देखो a इक्वल टू 10 मीन्स x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 10. दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू 20. Therefore y equal to 20 minus x and let it be equation number 3. g equal to 8. What is the value of g? g equal to 8. So g equal to root of xy equal to 8. Squaring on both sides we get xy equal to 64. Therefore x into 20 minus x equal to 64. x into 20 minus x equal to 64. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64. तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है in terms of x. So rearranging all these terms we get x square minus 20x plus 64 equal to 0. Now we have to factorize 64 whose sum is minus 20, means using splitting the middle term. तो इसके जो स्प्लिट करने के टर्म्स आते हैं वो माइनस 16 एंड माइनस 4 आते हैं. माइनस 16 देखो हमें यहाँ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 इक्वल टू 0. देन यू विल टेक कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स. कॉमन करने के बाद हमें ये टर्म्स आते हैं कि देयरफॉर x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. ये हुए फैक्टर्स. तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल टू 0 आर x minus 16, x minus 4 और equal to 0.
तो if x minus 16 equal to 0, then x equal to 16, or x minus 4 equal to 0, then x equal to 4. तो we get two values of x, 16 and 4. तो ये वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3. तो फ्रॉम थर्ड, इफ x इक्वल टू 16, यहाँ पर देखो, देन y इक्वल टू 20 माइनस 16, दैट इज 4. तो इफ x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 4. इफ x इक्वल टू 4 यहाँ पर रखो, तो y इक्वल टू 20 माइनस 4, दैट इज 16. तो y बिकम 16. तो इस तरह से हमें वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y ये दोनों मिल गए. तो x व्हेन x इक्वल टू 16, देन y इक्वल टू 4. इफ x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 16. तो ये हमें वैल्यूज देखो 16 4 और 4 16 ये मिलते हैं. तो हमें यहाँ पर किसी भी फॉर्म में आंसर को लिख सकते हो. देयरफॉर द टू नंबर्स आर 4 एंड 16. ये रहे हमारे नंबर्स. हमने एक वैल्यू x का ले लिया और दूसरा y का. Therefore the two numbers are 4 and 16, जिसके बारे में ये कंडीशंस दी गई थी. तो ये रहा इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट, अगर अब भी फार्मूले में कोई डाउट है, सपोज यू डोंट नो द फार्मूला फॉर AM, GM, HM, देयर रिलेशंस एंड अदर फार्मूले, डेफिनेशन ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड रिलेशंस, उसके जो भी हैं कुछ एग्जाम्पल्स वहां पर, तो ये सभी इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके लास्ट में देखो मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है. तो जस्ट वहां पर क्लिक करोगे तो सीधे सीधे फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे. और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करके रखिए. और इसके बाद अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लास्ट में एक लिंक दी गई है. जस्ट क्लिक ऑन लिंक, यू विल गेट फार्मूला लिस्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th. फाइंड टू नंबर्स whose AM exceeds their GM by 1 by 2 and their HM by 25 upon 26. So this question is also similar, but numbers are different here. So check the solution again. Let two numbers be x and y. ये हमने कंसिडर कर लिया कि टू नंबर्स कौन कौन से हैं, x एंड y. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए इनके कंडीशंस. According to the first condition of the question, AM exceeds their GM by half. Since A minus G equal to 1 by 2, or you can say G equal to A minus half, and let it be equation number first. देखो ये अपना जो कंडीशन यहाँ पर दिया है कि A minus G equal to half या A equal to G plus half, this implies that G equal to A minus 1 upon 2, and let it be equation number first. According to the second condition of the question, A minus H equal to 25 upon 26. A minus H equals 25 upon 26. This implies that H equal to A minus 25 upon 26. देखो H equal to A minus 25 upon 26. It is second equation. देखो G equal to A minus half and H equal to A minus 25 upon 26. ये हमारे पास टू गिवन कंडीशंस हैं. कंसिडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड. तो अगर हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमको यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा. इसके लिए हमें क्या करना होता है, यूजिंग द रिलेशन बिटवीन G, A एंड H. तो यहाँ पर है हमारा जो फार्मूला, वो फार्मूला है G स्क्वायर इक्वल टू AH. वी नो दैट G square equal to AH. Here G for geometric mean, A for arithmetic mean and H for harmonic mean. Substituting the value of G from equation first, here देखो इसकी वैल्यू क्या है, A minus half. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हो गया A minus half square equal to here A into value of H from second equation, A minus 25 upon 26, that is here A into A minus 25 upon 26. अभी लेफ्ट हैंड साइड को बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर
माइनस ए प्लस 1/4। इसको एक्सपेंड कर लोगे, एक मिल जाएगा आराम से, और यहाँ इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25a/26। नाउ ए स्क्वायर गोइंग बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड, वी गेट हियर 1/4 इक्वल्स a minus 25a/26। 1/4 equals a minus 25a/26। 26 बन जा 26a minus 25a, that is a by 26। देखो यहाँ पर इजिली मिल जाता है 1/4 इक्वल टू a minus 25a/26। तो ये मिल गया, हमें क्या मिला यहाँ पर a/26। दिस implies that a equals 13/2, क्योंकि देखो 1/4 इक्वल टू a/26, तो 26 गोज टू लेफ्ट साइड हियर, तो a इक्वल टू 26/4 आता है। क्या आता है यहाँ पर a इक्वल टू 26/4। इसको सॉल्व करके इन दोनों को, तो a इक्वल टू 26/4 का मतलब है दिस a इक्वल टू 13/2, 2 से कट हो जाता है तो 13/2 रिमेनिंग। Substituting a equal to 13/2 in equation first, we get g. So therefore g equal to 13/2 minus 1/2 equals 12/2। अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन हो गया, 12/2 that is 6। तो we get g equal to 6। इजिली मिल जाता है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो g इक्वल टू 6 मीन्स ज्योमेट्रिक मीन हमें मिल गया 6 और अरिथमेटिक मीन मिल गया 13/2। तो आइए इनके नीचे कंटिन्यू इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो a फॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स x एंड y। तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है x प्लस वाई अपॉन टू, ये टू नंबर्स के लिए है। तो a इक्वल टू 13/2, देयरफॉर x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू 13/2। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 13। वी शुड राइट हियर x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारे पास यहाँ ज्योमेट्रिक मीन है g इक्वल टू 6, बट g इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई, ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स रूट ऑफ एक्स वाई। तो रूट एक्स वाई इक्वल टू 6, squaring on both sides we get xy equal to 36 and let it be equation number 4। xy equal to 36 and let it be equation number 4। therefore x into, अब यहां से देखो what is the value of y from equation 3, value of y from equation 3 13 minus x, substituting here, so we get x into 13 minus x equal to 36। अब इनको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, x इंटू 13, 13x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर एंड हियर इट इज 36। तो 13x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज 36 whose sum is माइनस 13। अब हमें यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है, और वो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स आ गए 9 एंड 4। तो वी शुड राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इक्वल टू 0। और अब क्या करना है, कॉमन करोगे, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन करो और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन करो, और इसके बाद जो फैक्टर्स आएंगे उनको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखो, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4। तो वी गेट, अब देखो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 और x माइनस 9 एंड x माइनस 4 और इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डायरेक्टली यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना ही है। तो वी गेट x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 9। If x minus 4 equal to 0, then x equal to 4. Now we have two values of x. अब ये टू वैल्यूज ऑफ x को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ऐसा लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इफ x इक्वल टू 9, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, 9 प्लस वाई इक्वल टू 13, देयरफॉर y इक्वल टू 13 माइनस 9, दैट इज y इक्वल टू 4। If x equal to 4, we should substitute here. So 4 plus y equal to 13. Therefore, y equal to 13 minus 4 becomes 9. So x equal to 9, y equal to 4. When x equal to 4, y equal to 9. Hence,
टू नंबर्स आर 4 एंड 9। तो ये हमारे न्यू नंबर्स जो अभी अभी इस क्वेश्चन के लिए हैं वो हैं 4 एंड 9, जिसके बारे में इसमें कंडीशंस एम, एचएम एंड जीएम के लिए प्रोवाइड की गई है। तो फॉर एम, जीएम एंड एचएम ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये दोनों ही क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन थे किससे? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीन्स अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के कुछ इसमें रिलेशंस दिए गए थे, जिसे उनके रिलेशन से हमें पता लगाना था कि वो टू नंबर्स कौन से हैं जिनके बारे में ये रिलेशंस ट्रू हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सीईटी, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन किसी भी वे में ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ट्रिकी हैं और फॉर्मूले से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वंस अगेन, अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक फार्मूला नहीं मालूम है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में देखो एक लिंक प्रोवाइड किया हूँ, वो लिंक पर क्लिक करते ही फार्मूलाज के वीडियो पर पहुंच जाओगे और उसमें ओनली एम, जीएम, एचएम, सिग्मा नोटेशन एंड हार्मोनिक मीन का फार्मूला दिया गया है। उसमें जा करके वो फार्मूले को अच्छे से स्टडी करो और वो फार्मूला समझ में आने के बाद फिर से इस वीडियो पर आकर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। और अभी जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो डियर स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज, अब ये एक्सरसाइज तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी चैप्टर के रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूअस स्टडी करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।